Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is states of matter. In this chapter, what do you mean by matter? Matter is anything which occupies space and has some mass, like this. This is a pen. Pen that occupy the space and it has also mass. So this is a matter. Book, chair, table. Okay, all these are matters. Matter exists in three states. कौन कौन सी states हैं बेटा? Solid, liquid and gas. These are the three states. In these three states, the chemical properties of the substance that remain same, but the rate of reaction that is different. Okay. Now, first, solid state. The matter in the solid state that have a definite size and definite shape and definite mass, like iron, silver, common salt, that is NaCl. Okay. Liquid state. A matter in liquid state that shows definite volume, definite mass, but not a definite shape. ओके लिक्विड की कभी भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. ओके बिकॉज इट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर. ओके लिक्विड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक वाटर, oil, etc. Okay, now next is gas. A matter in gaseous state that neither shows a definite volume nor a definite shape, but it has a definite mass. Okay, it acquire the shape and the volume of the container. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, ओके कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नाउ मैटर की फोर्थ स्टेज भी होती है, बट जो तीन है ये मेन स्टेज है. सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द मेन स्टेट. देन फोर्थ स्टेट दैट इज द प्लाज्मा स्टेट. इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट. इस स्टेट में क्या होता है, जो सुपर हीटेड गैसियस स्टेट होती है ये, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है. ओके और इसको हम जैसे सन और जो स्टार्स होते हैं वे इसके एग्जाम्पल हैं. ओके नाउ द फिफ्थ स्टेट दैट इज सुपर कोल्ड सॉलिड. कौन सी होती है, सुपर कोल्ड solid form. So in the super cold solid form, atoms lose their separate identity. Okay और ये atoms जो होते हैं वो condense हो जाते हैं and that behaves like a single super atom. Okay so these are the 5 states of matters. Okay now the next topic is factor affecting the states of matter. Now what are the factors? Factor number 1, इसमें बेटा सबसे फर्स्ट आता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस देखो क्या होता है. इंटर मीन्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मीन्स द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स. वो एटम्स मोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे. ओके ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, दीज आर द वीक फोर्सेस एंड इट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. ओके सो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था जोहान्स वैंडरवाल्स ने इसको क्या है इन 1837 टू 1923 में और इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था. And so these forces is called as the van der Waals forces. Okay means these are the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions present in the ionic bond.
Okay. Now, van der Waals explained the deviation of real gas from the ideal behavior through these forces. Okay. Then I will discuss in this chapter. Okay. Now the types of intermolecular forces. First beta A, that is dispersion or London forces. These are dispersion forces or LONDONS, London forces. Okay. देखो इसमें क्या है. Dispersion forces that are exist between the neutral atoms and non-polar molecules. Okay. इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली एंड दे हैव नो डाइपोल मोमेंट. ओके, बट देयर डाइपोल मे बी डेवलप्ड टेम्परेरी. सो दिस डाइपोल या दिस टेम्परेरी डाइपोल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर नेबरिंग एटम. ओके, इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट जो है डेवलप कराना पड़ता है. ठीक है. एंड इंड्यूस टेम्परेरी डाइपोल इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल. इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस. जो हम टेम्परेरी डाइपोल जो डेवलप कराते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल. ओके, सो द टेम्परेरी डाइपोल ऑफ बोथ द एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर इन द सेम वे एज दैट ऑफ परमानेंट डाइपोल. Okay, so this type of force of attraction is called as the London forces. Okay, these forces that was first proposed by the London, so its name as dispersion forces. Okay, now some important points related to the dispersion forces. These forces exist between the neutral atoms and non-polar molecules. They have no dipole moment, so the temporary dipole moment is induced. Okay, this type of these forces are attractive. ये कैसी होती हैं? Attractive होती हैं. Okay, these forces depends on the many factors like this. Factors कौन कौन से बेटा देखो. Point number 1, distance. Distance between the अट्रैक्टिंग पार्टिकल्स मीन्स जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. ओके, सेकेंड डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन. ओके, and higher is the strength of forces. So the boiling point of noble gases that is increases from helium to radon. क्यों increase होता है? Due to increase in the number of electrons. Okay, क्योंकि number of electrons अगर बढ़ रहे हैं means increase number of electrons, it means strength of the force is also increases. Okay, now next is point number 3, polarizability. Polarizability, okay, of the particles. क्या होता है बेटा polarizability? Polarizability means the tendency of the electrons and the nuclei to get displaced from their average position. जो उसकी एवरेज पोजीशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई होते हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो डिस्प्लेस हो जाते हैं एवरेज पोजीशन से. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, लार्ज होगी, उतना ही इंस्टेंटेनियस डाइपोल बढ़ेगा. और इंस्टेंटेनियस डाइपोल बढ़ेगा तो लंडन फोर्सेस भी क्या होंगी बेटा? स्ट्रॉन्ग बनेंगी. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, that is molecular structure. Molecular structure means in a branch structure surface area is less. अगर आप किसी ब्रांच बनाओगे तो सरफेस एरिया कम होगा, और अगर आप लीनियर फॉर्म में करोगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. अगर ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा? जितने ब्रांच स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे इट मीन्स वहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया लेस हो जाएगी. तो लेस सरफेस एरिया.
सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सरफेस एरिया कम है तो लंडन फोर्सेस क्या हो जाएंगी बेटा, लेस हो जाएंगी, लंडन फोर्सेस लेस। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट तो आपकी जो है लंडन और डिस्पर्सन फोर्सेस है। अब सेकेंड आपके जो है दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, डाइपोल मीन्स दीज फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल, जिसका डाइपोल परमानेंट होता है उसी में ये एग्जिस्ट करती है। देखो परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या है, जैसे बेटा HCl है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है इस H पे पार्शियल डेल्टा है, इस पे माइनस डेल्टा है। ओके, मीन्स जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, तो इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ओके, तो इस टाइप के जो डाइपोल्स होते हैं उनमें पार्शियल चार्ज होता है, ठीक है, जिसको हम एक पार्शियल चार्ज का मतलब है कि इसको हम एक डेल्टा से शो करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है डेल्टा, कि डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐसे। और ये जो चार्ज होता है पार्शियल चार्ज, इसका मतलब क्या है कि ये कम होता है किससे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये 1 यूनिट चार्ज होता है, इस 1 यूनिट चार्ज से ये हमेशा लेस होता है। ओके, ये फोर्स जो होती है बेटा ये अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज एंड। ओके, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल दैट अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये ऐसे बनता है बेटा, जैसे मान लो ये आपका है H प्लस डेल्टा, ये सॉरी Cl माइनस डेल्टा, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका H प्लस डेल्टा एंड Cl माइनस डेल्टा, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, तो यहाँ आपकी इंटरेक्शन होगी। ओके, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है HCl मॉलिक्यूल में। ओके, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल। नाउ दिस फोर्स डिपेंड ऑन द, अब इसमें कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, नाउ फैक्टर इज, फर्स्ट फैक्टर है बेटा पोलैरिटी, और यू कैन सी दैट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, मीन्स जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी ही डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, हायर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर विल बी द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नाउ दीज फोर्सेस दैट वर नेम्ड एज, सबसे पहले इसको किसने दिया था, किज्डम ने दिया था, इन फोर्सेस को किसने दिया, किज्डम। ओके, इन 1912 में दिया था। सो दिस फोर्सेस इज कॉल्ड एज किज्डम फोर्सेस, और सॉरी किज्डम फोर्सेस और ओरिएंटेशन फोर्सेस भी बोलते हैं। ओके, ओरिएंटेशन फोर्सेस। ओके, नाउ जो आपके डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं बेटा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दैट इज स्ट्रोंगर देन लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी होती है बिटवीन द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रपोर्शनल टू द, that is proportional to the 1/r³, means that is inversely proportional to third power of radius. Okay, but dipole dipole interaction energy between the polar molecules जो रोटेट करते हैं, ये तो था स्टेशनरी के लिए, अब है बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो रोटेट करते हैं, ठीक है, क्या है रोटेट, उसके लिए जो फोर्सेस होती हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ इन पोलर मॉलिक्यूल्स
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट। ओके, सो जो टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में, क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड टाइप, सी टाइप, that is dipole induced dipole, dipole induced dipole forces। ठीक है, these forces exist between the polar molecules having a permanent dipole and non-polar, means polar molecules में भी होती हैं बेटा ये, and non-polar molecules में भी। ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट डाइपोल, जिसमें खुद ही परमानेंट डाइपोल होता है, बट इन केस ऑफ नॉन पोलर इट इज नो डाइपोल, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। मीन्स ये आपका जैसे मान लो ए है और दिस इज बी मॉलिक्यूल है। ओके, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें पार्शियल डेल्टा है बेटा, ये माइनस डेल्टा है, तो आपका जो डेंसिटी का साइन है वो ऐसे आता है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर। ओके, अब इस केस में क्या है, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, बट इसमें डाइपोल मोमेंट हमें इंड्यूस कराना पड़ेगा, तो इसका तो बेटा एज इट इज आ जाएगा। ये आपका ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, प्लस डेल्टा है, दैट इज माइनस डेल्टा। यहाँ पे क्या है, परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल, बट यहाँ पे क्या है बेटा, हमें डाइपोल को इंड्यूस कराना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज ये आपका आ जाएगा प्लस डेल्टा टू माइनस डेल्टा। ओके, तो एज द चार्ज एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस द डाइपोल इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे इंड्यूस होगा बेटा, बाय द डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देंगे। ठीक है, सो बोथ द मॉलिक्यूल्स दैट गेट अट्रैक्टेड बाय द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मीन्स ये तो डाइपोल था ही, यहाँ इंड्यूस करा दिया डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर में खुद ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर में हम इंड्यूस करा देंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस डाइपोल्स। देखो बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स, ये जो आपका है फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन दैट इज डिपेंड ऑन द, मीन्स दीज फोर्सेस इंटरेक्शन एनर्जी दैट इज डिपेंड ऑन द सिक्स्थ पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस जो है बेटा बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल्स का, वैसे वैसे जो इंटरेक्टिंग एनर्जी है दैट विल बी डिक्रीजेस। ओके, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ सेकेंड पॉइंट यू कैन से दैट dipole moment of polar molecules, dipole moment of polar molecule। देखो इस केस में क्या होता है, हायर द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट कम है, मीन सॉरी हायर है, देन हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर डाइपोल मोमेंट हायर है तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, हायर होगी, तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ। ओके, बॉन्ड बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, देखो पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, मीन्स हायर द पोलराइजेबिलिटी मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट बॉन्डिंग दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसमें हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जरूरी है। वन हाइड्रोजन एटम होगा बेटा और दूसरा आपका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये होने जरूरी है। इस पे बेटा प्लस डेल्टा, these are having minus delta, and after that it also form this type of bonding. This is hydrogen and this is most electronegative element, then this shows the hydrogen bonding. Okay, अब इसमें हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये भी कहते हैं कि जो क्लोरीन का साइज है वो बढ़ता जाएगा, बट जो पार्टिसिपेशन है हाइड्रोजन की वो वैसे ही रहेगी। अब इसमें जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो कितनी होती है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज इक्वल टू 10 to 100 किलो जूल पर मोल होती है, 10 से 100 के बीच में होती है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका कहाँ होता है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड्स लाइक द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। Okay, now the fifth type of bonding that is ion dipole interaction. इसको क्या बोलते हैं? ion dipole interaction. देखो बेटा इसमें क्या होता है? These are the force of attraction that exist between the ions and a dipoles. ions कौन से बेटा? cations and anions. और डाइपोल होना जरूरी है, इसलिए इसका नाम रखा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस। अब द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस। चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस इन पे डिपेंड करती है इसकी स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जो सोडियम क्लोराइड है जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयंस में टूटता है, Na+Cl-, ऐसे टूटता है बेटा। तो ये आयंस, दीज आयंस गेट सराउंडेड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ये आपका सोडियम है, प्लस आयन है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ बेटा ये सोडियम आयन है ना, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे एडजस्ट करेंगे, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये भी प्लस डेल्टा, ऐसे ऐसे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ जुड़ जाएंगे। ओके, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, दिस इज ऑल्सो प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, this is minus delta. Okay, this is also having H or H, plus delta और this is minus delta. Okay, तो इसके चारों तरफ क्या आ गया? वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। इट मीन्स these ions that get surrounded by the water molecules which have a dipole moment, इस वाटर मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल मोमेंट होता है। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा बेटा? क्लोरीन आयन आ जाएगा। अब क्लोरीन आयन के पास नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन्स को। तो ये बेटा ऐसे शो करेगा, इसके चारों तरफ ऐसे प्लस साइन आ जाएगा इधर। सेम इन दिस केस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस विल माइनस डेल्टा, दिस इज प्लस डेल्टा, दिस इज ऑल्सो प्लस डेल्टा। ये ऑक्सीजन है बेटा, ये आपकी इधर आया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज प्लस डेल्टा, ये भी प्लस डेल्टा है, और ये क्या आ गया? माइनस डेल्टा। ओके, सो ड्यू टू दिस हाइड्रेशन ऑफ आयंस द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज ए डाई इलेक्ट्रिक। देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन पहले अटैच थी सोडियम आयन से, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है क्लोरीन से। ओके, मीन्स दिस वाटर मॉलिक्यूल्स किसका बिहेव कर रहा है? डाई इलेक्ट्रिक का बिहेव कर रहा है टू कीप द आयन सेपरेटेड। सो NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, इसलिए NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है। ओके, सो यहाँ पे जो फोर्सेस है बेटा, दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा ये आयन है, ये डाइपोल है, ये आयन है सेंटर में एंड इसके चारों तरफ क्या है? डाइपोल है। ठीक है, इट मीन्स जो स्ट्रेंथ है इन फोर्सेस की दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द साइज ऑफ आयंस एंड ऑल्सो ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द
डाइपोल मोमेंट एंड साइज ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। ओके, जैसे इसमें NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रिपल्सिव फोर्सेस। ओके, रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं? These forces that exist between the electron cloud or the nuclei of two molecules. दो molecules हैं, उनकी nuclei जो होती हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करती है जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो ये जो फोर्सेस होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस, इनमें क्या होता है बेटा, ये फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में दैट विल बी डिक्रीजेस। ओके, मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड द मोलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट, बहुत नज़दीक होते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं सॉलिड और लिक्विड के केस में, तो वहाँ पे रिपल्सिव इंटरेक्शन